the provisions regarding bookkeeping, who is required to keep the books of accounts in what circumstances. Then 44AB says who is required to get the books audited in what circumstances. Then there was 44AD, that was main section, which was presumptive taxation for businesses. But that excluded certain businesses, and those businesses will come under section 44AE, which my flow will be exactly the same. I'll go section wise, subsection wise, and then we'll find out the issues therein. 44A is the special provision for computing profits and gains of business of plying, hiring, or leasing goods carriages. If you remember, 44AD में ये वाले businesses को exclude किया गया था कि इनको नहीं लेंगे, इनके लिए एलिजिबल, ये एलिजिबल नहीं थे 44AD के लिए. These are eligible for 44AE. अब हम सेक्शन वाइज चलते हैं, then we'll see इसमें क्या निकल के आता है. Notwithstanding anything to the contrary contained in section 28 to 43C. इसमें वो सारे sections आ गए, खर्चे वर्चे देते हैं हमें. In the case of an assessee who owns not more than 10 goods carriages at any time during the previous year, and who is engaged in the business of plying, hiring, or leasing such goods carriages, the income of such business chargeable to tax under the head profits and gains of business or profession shall be deemed to be the aggregate of the profits and gains from all the goods carriages owned by him in the previous year, computed in accordance with the provisions of subsection 2. सुनने में तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, बट इसमें भी बहुत सारे इश्यूज निकल के आते हैं. ये कहता है कि इफ यू आर एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग सच गुड्स कैरेजेस, कोई गुड्स कैरेजेस हैं, कोई ट्रक व्रक आप रख रहे हैं और आप काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस है प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग सच गुड्स कैरेजेस, तो आप इसमें आते हैं. बट आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. इट सेज इन द केस ऑफ एन असेसी, इट टॉक्स अबाउट असेसी. If you remember, 44AD was talking about the eligible assessee, and there was a definition of eligible assessee, which was individual, HUF, and partnership firm, not LLP. Here the word used is assessee. So every assessee, even a company, can come under this section. Who owns not more than 10 goods carriages. आपके पास 10 से ज़्यादा goods carriages आप own नहीं करने चाहिए, आपकी मिल्कियत नहीं होनी चाहिए, आपके अपने ओनरशिप नहीं होनी चाहिए. 10 goods carriages at any time during the previous year, मतलब 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और साल में during the previous year अगर एक दिन भी आपका 10 से ज्यादा हो गया, जैसे आप काम करते हैं, ये वाला तो ट्रक्स खरीदते भी है, पुराने वाले ट्रक्स निकाल भी देते हैं. at one particular time if you had more than 10 trucks, 11-12 हो गए, तो आप इससे बाहर हो जाएंगे, आपको ये एलिजिबल नहीं होगा. बिकॉज द पर्पज इज कि थोड़े छोटे वाले जो व्यापारी हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, उनको इसके अंदर लाया जाए, बड़े वालों को नहीं. तो प्लीज टेक नोट, दिस सेज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड who is engaged in the business of plying, hiring or leasing such goods carriage. इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है. The income of such business chargeable to tax under the head profits and gains of business shall be deemed to be the aggregate of the profits and gains from all goods carriages owned by him in the previous year, computed in accordance with the provisions of subsection 2. अब वो एक presumption ली गई है कि अगर आपके पास 10 से ज्यादा goods carriage नहीं है, तो आपको subsection 2 में एक कैलकुलेशन दे रखी है, उसके हिसाब से आपकी इनकम मानी जाएगी. अब इसमें एक और भी एक अच्छी चीज है, when he says who owns not more than 10 goods carriage, जैसे मैंने कहा कि आपकी मिल्कियत नहीं होनी चाहिए, आप ओनर नहीं होने, आप ओनर होने चाहिए उस ट्रक के. ये नहीं कि आपने रेंट पर लिया और उसको प्रिजम्पटिव में ले गई, यू कैन नॉट टेक दैट. लेकिन इसमें एक कैच है जो इसकी एक्सप्लेनेशन में आता है. एक्सप्लेनेशन बी पढ़ना चाहूंगी मैं, which says an assessee who is in possession of a goods carriage, whether taken on hire purchase or on installment, and for which the whole or part of the amount payable is still due, shall be deemed to be the owner of such goods carriage. तो ये कैच है इसमें, इसको ध्यान रखिएगा.
ओनरशिप सबसेक्शन 1 कहता है ओनरशिप, तो ओनरशिप में तो आप आ गए इसमें। अगर 10 से ज्यादा आप ओन नहीं करते हो, 10 या 10 से कम करते हो, तो यू आर अंडर इट। लेकिन अगर आपने कोई गुड्स कैरेज, कोई ट्रक, लॉरी जो भी होते हैं, वो आपने हायर परचेज पर या इंस्टॉलमेंट में ले रखा है, बिकॉज इस वाले बिजनेस में इस तरह की जो कैरेजेस होते हैं, इनको लेने में अक्सर हायर परचेज एग्रीमेंट चलते हैं। एंड यू आर अवेयर, वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हायर परचेज एग्रीमेंट में जब तक हम सारी इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे देते, ओनरशिप मेरे पास नहीं आती। लेकिन ये सेक्शन कहता है कि अगर आपने सारी इंस्टॉलमेंट्स नहीं भी दी हैं, आपने हायर परचेज पर कोई लॉरी ले रखी है या ट्रक ले रखा है, तो आप डीम्ड ओनर माने जाओगे। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। अब इसका मतलब ये निकल कर आया कि अगर आपके पास पूरे साल में किसी भी दिन 10 से ज्यादा गुड्स कैरेज नहीं है जो आपके ओन्ड हो, या आपने हायर परचेज पर या इंस्टॉलमेंट्स में ले रखे हो, बेशक आपने सारी इंस्टॉलमेंट्स ना दी, तो आप इस वाले सेक्शन में आ जाते हो। और उस किस तरह से आपकी इनकम प्रिज्यूम की जाएगी वो सबसेक्शन 2 में दे रखा है। तो सबसेक्शन 2 में चलते हैं। आई थिंक इसमें मैंने ले लिए जो भी थे। असेसी होना चाहिए, असेसी कैन बी एनी असेसी, इवन कंपनीज कम अंडर दिस प्रोविजन। और आई थिंक आई एम डन। नाउ कम टू सेकेंड। अब यहाँ कुछ बड़ी अच्छी बातें निकलेंगी। For the purposes of subsection 1, the profits and gains from each goods carriage. अब ध्यान दीजिए, ये each goods carriage की बात कर रहा है। सपोज आपके पास एक से ज्यादा है लेकिन 10 या 10 से कम है, तो आप देखिए कैसे कैलकुलेट होगी आपकी इनकम। Being a heavy goods vehicle, अब हैवी गुड की डेफिनेशन मोटर व्हीकल एक्ट में, और ये चीज इन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी लिख रखी है। शेल बी एन अमाउंट इक्वल टू 1000 रुपीज पर टन, 1000 रुपीज पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट। मतलब जो आपका व्हीकल है जिस पर आप वो काम करते हो, उसका जितना वेट है उसका पर टन 1000 रुपीज। और अनलेडन वेट, अभी मैं अनलेडन वेट बताती हूँ आपको। एज द केस में बी for every month or part of the month during which the heavy goods vehicle is owned by the assessee in the previous year, or an amount claimed to have been actually earned from such vehicle whichever is higher. इस क्लॉज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सपोज मेरे पास 8 ये हैवी गुड्स व्हीकल हैं, चाहे मैंने वो पूरे साल चलाए हैं या नहीं चलाए हैं। देखिए जो सेक्शन की लैंग्वेज है वो कहता है विच आर ओन्ड बाय यू। अगर मैं ओन करती हूँ उन ट्रक्स को, उन लॉरीज को, उन गुड्स कैरेजेस को, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैंने उनसे काम लिया नहीं लिया, कितना लिया, चले नहीं लिए चले, वो मेरे गोडाउन में खड़े हैं चाहे, तब भी ये वाला सेक्शन इस तरह से उसकी कंप्यूटेशन होगी। ऐसे होगी जितना उसका वेट है, जितना उस व्हीकल का वेट है, पर टन 1000 रुपीज, पर टन 1000 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इन विच यू ओन दोज व्हीकल। मतलब अगर मेरे पास 4 ट्रक है और मान लीजिए 10,000 केजी उनका वेट होता है, मुझे आइडिया नहीं है कितना होता है, उसको टन में कन्वर्ट करके पर टन 1000 रुपए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जितने पूरे साल में जितने महीने या पार्ट ऑफ द मंथ मैंने उनको ओन किया है, क्योंकि मैं बेच भी सकती हूँ, या मैंने पार्ट ईयर शुरू होने के बाद में खरीदे हो, तो इस तरह से उसकी इनकम कैलकुलेट करी जाती है। इसमें एक तो ग्रॉस व्हीकल वेट है, जैसे कोई ट्रक है उसका जो भी वेट होता होगा उसके बेसिस पे निकलेगा, और अनलेडन वेट और ग्रॉस व्हीकल वेट का वैसे तो मीनिंग मोटर व्हीकल एक्ट में आता है, वहां से हम देख सकते हैं, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है मोटा मोटी मैं आपको बता देती हूँ। ग्रॉस व्हीकल वेट तो ट्रक का जो भी वेट है, तो जिस टाइम ट्रक लेते होंगे तो उसमें लिखा आता होगा कितना वेट है ट्रक का, उस हिसाब से निकलेगा। अनलेडन वेट होता है अगर ट्रक के साथ वो लगा देते ना, ट्रेलर लगा दिया या कोई भी उस तरह का कुछ चीज उसके साथ सप्लीमेंट कर दी, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा ना। आपने कहा मेरा तो ट्रक इतने टन का, और साथ में आपने ट्रेलर भी लगा दिया और आप डबल सामान लेकर जा रहे हो,
तो अनलेडन वेट में उस ट्रेलर का भी वेट ऐड होता है। तो आई थिंक आई एम क्लियर ऑन दैट। कोई भी एक गुड हेवी गुड्स व्हीकल जो होगा उसकी इस तरह से कैलकुलेशन होगी। प्लीज बियर इन माइंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सेक्शन की आती है, आपने काम किया या नहीं किया, आपका ट्रक चला नहीं चला, आपके पास कितने पैसे आए कितने नहीं आए, just because you are owner and you are in the business, this type of business, तो ये आपकी प्रिजम्पटिव बेसिस पर ये आपकी इनकम मानी जाएगी। लेकिन एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है जो एंड में लिखा है, इन द प्रीवियस ईयर और एन अमाउंट क्लेम टू हैव बीन एक्चुअली अर्न फ्रॉम सच व्हीकल। अब हो सकता है मैंने काम, भाई डेफिनेटली अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरे पास भी तो कुछ वर्किंग होगी कि मैंने उस व्हीकल से कितने पैसे कमाए हैं। विच एवर इज हायर, प्लीज टेक नोट, या तो इस वाली कंप्यूटेशन के हिसाब से निकाल लिया जाए हर व्हीकल की इनकम, या फिर एक्चुअली मैंने हर व्हीकल से कितने पैसे कमाए हैं। तो जो हायर है वो आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बेसिस पे आपकी इनकम मानी जाएगी। आई थिंक आई एम डन विद दिस। ये हेवी गुड्स व्हीकल की बात करता है। नाउ कमिंग टू अदर, हेवी की डेफिनेशन पीछे आएगी। अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल, कुछ हल्के कैरिज होते होंगे, शैल बी। अब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? शैल बी एन अमाउंट इक्वल टू 7,500 रुपीज फॉर एवरी मंथ, 7,500 रुपए हर महीने के लिए, और पार्ट ऑफ अ मंथ ड्यूरिंग विच द गुड्स कैरेज इज ओन्ड बाय द असेसी इन द प्रीवियस ईयर। आगे सेम लैंग्वेज है। और एन अमाउंट क्लेम टू हैव बीन एक्चुअली अर्न फ्रॉम सच गुड्स कैरेज विच एवर इज। मैं अभी अनलेडन, लेडन का मीनिंग देखा मैंने। अनलेडन का मीनिंग है नॉट कैरिंग ए लोड। अच्छा ठीक है, मैं भी तो कह रही हूँ। ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट का मीनिंग हुआ कि खाली ट्रक का क्या वेट है और भरे हुए ट्रक का क्या वेट है, ये मीनिंग आया। नहीं, अनलेडन का मतलब भी भरा हुआ नहीं है, खाली है। हाँ, अनलेडन का मतलब खाली। और ग्रॉस व्हीकल वेट का भी खाली है, उसमें भी कोई आप सामान का वो नहीं लेते हैं। ओके, लेते हैं। इसको मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ, बट आई एम टू श्योर कि जो सामान आपने कैरी करा है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। आपने करा ही नहीं अगर कैरी, तो आप कहोगे मैं तो कुछ कमाया ही नहीं, मतलब मेरा प्रिजम्पटिव में भी जीरो ही आता है। ठीक है, चलिए सेकंड पे आते हैं। इससे पहले एक और क्वेश्चन इसमें, जैसे जो ट्रक्स का 15 साल के बाद आप चला नहीं सकते हैं, तो आपको भले अगर आपके पास है तो वो आपके गोडाउन में ही पड़ा रहेगा, वो कबाड़ में बेच सकते हैं, मतलब आप मार्केट पब्लिकली, मतलब उसको रोड पे नहीं ले जा सकते। तो डेप्रिसिएशन कितना मिलता है ट्रक पे? बुक वैल्यू तो वैसे ही खत्म हो जाएगी आपकी। बेच बाच देकर वो भी आगे समझाऊंगी मैं, ब्लॉक में किस तरह से इसको ट्रीट करना है। डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे 10 और लेस व्हीकल्स की बात है, अप टू 10 व्हीकल्स। नहीं, तो आपका ये कहना है कि कोई ट्रक ऐसा होगा जो 15 साल बाद हम चला ही नहीं सकते। हाँ जी, और वो भी है अभी हमारे पास ओनरशिप में पड़ा है, बेचा नहीं हमने, नहीं बिका, उसका क्या होगा? और ओनरशिप तो है, ओनरशिप, और उसकी वजह से वो 11 हो गए। सतीश 11 हो गए ना, तो आप इससे बाहर हो जाएंगे, बिकॉज दैट इज योर ओनरशिप। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डेप्रिसिएशन से मिलाकर आगे बताने वाली हूँ, प्रोविजन आएगा, ठीक है मैम, देन इट विल बी क्लियर टू यू। हैवी गुड्स का ऊपर वाले हिसाब से हो गया। जो उसके अलावा जो गुड्स होंगे, इसमें प्लीज ध्यान दीजिए, इसमें वो पर टन वाला कोई सिस्टम नहीं है। इन्होंने सिंपली दे दिया शैल बी एन अमाउंट इक्वल टू 7,500 रुपीज फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच द गुड्स कैरेज इज ओन्ड बाय द असेसी इन द प्रीवियस ईयर, और एन अमाउंट क्लेम टू हैव बीन एक्चुअली अर्न फ्रॉम सच गुड्स कैरेज व्हिचएवर इज हायर। तो आई थिंक आई एम क्लियर ऑन दैट, क्योंकि सेकंड वाला इज वेरी इजी टू कंप्यूट। 7,500 रुपए हर कैरेज के लेने। अगर आपके पास 8 कैरेज हैं और 8 के 8 हेवी गुड्स व्हीकल में नहीं आते, तो 7,500 रुपए हर महीने के हिसाब से या पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से, जितने आपने ओन किए हो या हायर परचेज पे इंस्टॉलमेंट्स पे ले रखे हो, दैट इज ऑल्सो डीम्ड ओनरशिप, उसको 7,500 से मल्टीप्लाई करिए, उतने मंथ के हिसाब से वो आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में निकल आएगी आपकी इनकम। और अगर एक्चुअली यू हैव अर्न मोर देन दैट, यू आर सपोज्ड टू डिक्लेयर द हायर अमाउंट।
चलिए अभी इसमें कुछ इश्यूज आएंगे आगे, थोड़ा सा तेजी। Section subsection 3, any deduction allowable under the provisions of section 30 to 38 shall for the purposes of subsection 1 be deemed to have been already given effect to, and no further deduction under those sections shall be allowed. I think इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह का प्रोविजन हर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में होता है, क्योंकि वो तो फिर उसका जो पर्पस है वही डिफीट हो जाएगा अगर आपको खर्चे फिर मिलेंगे। जो आपको एक प्रिजम्पटिव बेसिस पर एक इनकम बनाई गई है, दैट सबस्यूम्स ऑल योर एक्सपेंसेस आल्सो। सो सेक्शन 30 और 38 तक जितने भी खर्चों की बात होती है वो आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। इट इज एज्यूम कि वो आपको वहां मिल गए जब आपने कैलकुलेट करी इनकम, प्रोवाइडेड दैट वेयर द असेसी इज अ फर्म। अब अगर आप पार्टनरशिप फर्म है, the salary and interest paid to its partners shall be deducted from the income computed under subsection 1, subject to the conditions and limits specified in clause B of section 40. जो 40B के हिसाब से अगर पार्टनर्स को कोई सैलरी या इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो वो डिडक्शन आपको अलग से मिल जाएगी। एंड इफ यू रिमेम्बर, ये वाला प्रोवाइजो पहले उसमें होता था 44AD में, अब उसको हटा दिया गया है। वहां पर आपको इसकी डिडक्शन नहीं मिलती है, पार्टनर सैलरी और इंटरेस्ट की नहीं मिलती है, यहाँ पर लेकिन मिलती है। नाउ कम्स मोर इम्पोर्टेंट सबसेक्शन, द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एनी एसेट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1। कोई भी फिक्स्ड एसेट जो आप यूज कर रहे हैं उस बिजनेस में, shall be deemed to have been calculated as if the assessee had claimed and had been actually allowed the deduction in respect of the depreciation for each of the relevant assessment years. इस तरह के प्रोविजन ऑलमोस्ट सारे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में है। डेप्रिसिएशन आपको मिलता नहीं है, अलग से नहीं मिलता, लेकिन जैसा मैंने लास्ट टाइम भी इंसिस्ट किया था कि जो भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हैं वो अपना एक फिक्स्ड एसेट का चार्ट हर साल बनाएं, और जो इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन मिलता है उसके बेसिस पर अपना डेप्रिसिएशन भी हर साल का कैलकुलेट करें और रिटर्न डाउन वैल्यू भी कैलकुलेट करें। इससे दो पर्पसेस मोटे मोटे सॉल्व होते हैं। पहला तो ये कि प्रिजम्पटिव जरूरी तो नहीं है कि आप हर साल प्रिजम्पटिव लेते ही रहेंगे। मान लीजिए आज इस साल में आपके पास 10 ट्रक थे, अगली बार आपके 12 ट्रक हो गए, एक दिन को भी अगर 12 हो गए तो आप इससे बाहर निकल जाएंगे। इन दैट केस तो यू हैव टू गो टू द नॉर्मल प्रोविजंस। नॉर्मल प्रोविजंस मतलब आपकी बुक्स देखी जाएंगी, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा जाएगा, उसमें जिस तरह से नॉर्मली इनका I think there's a broadband issue with Ranu ji.